The preparation of the mains will be starting from 3rd of this month. Okay, day after tomorrow, we are starting the mains preparation. Because असली जंग तो अब है. The marks of prelims are not going to be added anywhere. ये just क्रीम को निकालने का एक तरीका था. The cream is out. हर जगह क्रीम की ही पूछ होती है. दूध को साइड में फेंक दिया जाता है क्रीम निकाल के. So I'll be displaying the question and you can keep your question paper with you. My question number may be varying with you and even options are also varying. So be very careful. Don't look at ABCD, just look at your answers. If you will to object any question, you are most welcome. I will listen to your arguments and if required, we will make necessary changes. Okay. So let us go for question number 1. Recent terminology used for repayment of public debt, that is preferred, is transfer, moratorium. Question number 2. In which region of the world are the highest number of volcanoes found? It is Circum-Pacific belt. Question number 3. How many members does the President of India nominate in Rajya Sabha? It is 12. This was an easy question, I believe. Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Act 2025 represents a significant upgrade over Manrega. Because in Manrega, first option is structural weakness is there, not able to enhance rural employment, absence of transparency in planning, and absence of accountability. So the correct answer is all of the above. Question number 5, which one of the following is not properly matched? So the C answer, 74th Constitutional Amendment Act, talks about center-state relation. It is wrong answer. It deals with urban local bodies. Question number 6, under which title has Dara Sikho translated 52 Upanishads into Persian language? It is Tiri Akbar. Question number 7, which of the following best explain the concept of sustainable development? The right answer is development that meets present need without harming the future need. Question number 8, first Indian astronaut who visited International Space Station. This is a current affair and it is Group Captain Sudhanshu Shukla. Which constituent authority determines the disqualification of MPs of Lok Sabha under 10th schedule? The right answer is Speaker of Lok Sabha. Bhagat Singh was the founding secretary of which of the following organization? The right answer is Punjab Navajivan Navjawan Bharat Sabha. The next is consider the following statement with reference to present Chief Justice of India. So present Chief Justice of India, Justice Surya Kant, and he is the 52nd Chief Justice, which is wrong. He is 53rd Chief Justice. So only one is the right answer. When lead nitrate powder is heated in a boiling tube, brown fumes are evolved. These fumes are of, so it is nitrous oxide, NO2. When and where was Guru Nanak Ji, the founder of Sikhism, was born? So he was born in 1469 in Talwandi, now in Nankana Sahib, Pakistan. The first Indian woman to win Mrs. Universe crown. Again, one more current affair. The right answer is Sherry Singh. Question number 15. When and where did the first session of Indian National Congress take place and how many delegates participated in it? So it took place in 1885. That was a very common question, but number of delegates were a confusing one. So total there are 72 delegates. So A is the right answer. December 1885 and 72 delegates are there. A is the right answer. Question number 15 is A. Please make a note. Question number 15 is A.
Excuse me, sir. Sir, In your Just go option, ahead. Calcutta is written. C option, Bombay is written. Yes, sir, C lanes. सर आप सी ही बता रहे Okay. हैं लेकिन आप बोलने में सर ए बोल रहे हैं, सर लिखा तो सी ही है। It is C. जी C. सर। Yeah, it is C. Bombay with 72 delegates. Question number 16. Where was UN Climate Summit COP30 held? It held in Brazil. Another current affair. करंट अफेयर काफी अच्छे तरीके से पूछेंगे, केवल 25 के करंट अफेयर पूछे गए हैं. The cultural and educational right in Indian Constitution is guaranteed by the following. That is Article 29 and 30. Which of the following is not correctly matched? ये एजुकेशन और कमीशन ईयर को मैच करना था, तो वैसे तो ऑप्शन सी जो है वो भी सही नहीं है, गलत यहाँ पे आंसर दिया हुआ है. इट शुड बी इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904. तो दिस क्वेश्चन मस्ट बी क्लेम्ड. ओके, क्योंकि बाकी सब सही है. तो सर वही तो पूछे है, नॉट करेक्टली मैच. तो Sir, Right, that is right. exactly what the question was C, asking, C. basically. Right, right. So C is the right answer. C is the right answer. Question number 19. Assertion reason question. Khadar soil is more fertile than Bangar soil. Reason: Khadar is a new alluvial soil which has a higher concentration of fine particles and less concrete nodules. तो ये correct explanation है. A is the right answer. A and R are true, and R is the correct explanation of A. The definition of health as a state of complete physical, mental, and social well-being, and not merely the absence of disease and infirmity, is given by. तो इसे दिया है WHO ने, World Health Organization. In certain language, HIMAC is written in 21. How will SIPTAG be written in the code language? तो ये H को 8, I को 9, M को 13 ऐसे करके उन्होंने जोड़ा हुआ है और ACE को उसमें से घटा दिया है. So accordingly, the answer will be 16. Who presented the nebular hypothesis regarding the origin of Earth? The right answer is Laplace. Question number 23. The microeconomics and macroeconomics were first coined by. Answer is Ragnar Frisch. Question 24. Which of the following academy was founded by 9th century Abbasid Caliph Al-Muhammad, which undertook the ambitious project of translating Greek, Persian, Sanskrit texts on philosophy and science into Arabic? The right answer is Biat el-Hikama. So these are really tough questions. In the semi-arid regions of Rajasthan, what were the traditional underground tanks for storing drinking water called? Is tankas or tanka? Question 26. Which gas is responsible for greenhouse effect? This was easy one. Carbon dioxide. Which of the following Indian festival has been included recently in UNESCO Intangible Cultural Heritage List? So another current affair. Deepavali is the right answer. Arrange the Prime Minister in the chronological order of their tenure. तो ये भी थोड़ा सा आसान आंसर था. So the first one is Charan Singh, followed by VP Singh, then PV Narasimha Rao and HD Devagowda. फिर एक यहाँ पे रीजनिंग आया हुआ है. AEIOU वॉवेल्स यहाँ लिखे हुए हैं और फिर IOU AE from Yemen is produced in India and is in great demand worldwide. The right answer is Arabica. तो अगर मैं ओवरऑल देखूं जीएस के क्वेश्चंस को, तो एक इंग्लिश स्टूडेंट के लिए एक टफ क्वेश्चंस है. नॉट मॉडरेट बट टफ क्वेश्चंस. 30 में अगर आप 15 भी कर पा रहे हैं तो दैट्स अ वेरी गुड अचीवमेंट. ओके, ये सब जो हैं TCS लेवल के क्वेश्चंस हैं. अगर 2-4 को निकाल दिया जाए तो नॉट इजी एट ऑल. And that is the reason I am expecting the cutoff to be very less because of the GS questions. English questions are easy to moderate.
Let us see the English questions. Who said Shakespeare is above all writers, at least above all modern writers, the poet of nature? तो ऑब्वियसली आप देखेंगे कि कौन कौन शेक्सपियर का क्रिटिक है. एक टी.एस. इलियट शेक्सपियर के क्रिटिक है यहाँ पे, एक सैमुअल जॉनसन है. इन दोनों में से किसका वर्क आपके सिलेबस में है? टी.एस. इलियट का हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स वो है या फिर सैमुअल जॉनसन का है? तो सैमुअल जॉनसन का है. कुछ भी आइडिया नहीं है तो भी आंसर सही होना चाहिए आपका. प्रीफेस टू शेक्सपियर इनका हमारे सिलेबस में. Who says that the play of linguistic meaning is undecidable? ये तो पता नहीं कितनी बार हमने पढ़ा हुआ है, राइट? जैक डरीडा डिकंस्ट्रक्शन. ये किसी का गलत नहीं होना चाहिए. गलत हो रहा है इसका मतलब आप मेंटली स्टेबल नहीं है. ये एकदम इजी क्वेश्चन था. चार्ल्स बॉडलर के ले फ्लोरिस डूमन, ये हमने पढ़ा है कि इसके अंदर 100 पोएम्स थे. जो मैंने बताया था कि 100 पोएम्स हम नहीं पढ़ सकते हैं. तो ये सारे ऑप्शन गलत हैं. ये क्लेम करने लायक क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34. इन चैप्टर 1 आवर वुमेन, Vrinda Nabar argues that Indian women's identity is shaped by a double colonization. What are the two forces he identifies? तो ये तो हमने मॉक टेस्ट में किया हुआ था. सर लेस फेयर में आपने 126 बताए थे ना, फिर उसके बाद आपने बताया था कि 35 जो है वो ऐड कर दिया गया था नेक्स्ट एडिशन में. फर्स्ट में 100 बताई थी सर आपने. 100 ही बताया था मैंने, और 100 ही है. पीडीएफ में भी 100 ही है, वीडियो में भी 100 ही है, चारों तरफ 100 ही है. सर 100 में उसका 9 ओरिजिनल एडिशन में 100 ही है. बाद में जो ऐड किए गए हैं वो अलग अलग एडिशंस हैं. यहाँ पे हम जब भी बात करेंगे पब्लिकेशन की तो 100 ही आएगा उसमें. ओके सर. ओके, तो इसका सही आंसर सी है. द इंटरनल पैट्रियार्की ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, कास्ट एंड ट्रेडिशनल इन्फ्लुएंसेस ऑफ वेस्टर्न फेमिनिस्ट मॉडल्स. रूम ऑफ वंस ओन, ये ईयर ऑफ पब्लिकेशन सारे ही गलत हैं. दिस क्वेश्चन मस्ट बी क्लेम्ड. Which of the following is not a character in Things Fall Apart? ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था. यूजुलू इज द राइट आंसर है, जो केयर ऑफ गॉड से लिया हुआ है. Who is regarded to be grand, ungodly, godlike man in Herman Melville Moby Dick? इसमें कंफ्यूजन हुआ होगा आप लोगों को, क्योंकि जिस तरह से ये टर्म्स दिए हुए हैं, ग्रैंड, अनगॉडली, गॉड लाइक मैन. ओके, द राइट आंसर इज कैप्टन अहब. सर कंफ्यूजन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इसने ये कैरेक्टर खुद ही अपने आप ही मतलब जानता था कि वो गलत कर रहा है, फिर भी उसके बाद जिद पकड़ी हुई थी इसने. Right. Who said the following in the play Death of the Salesman? And for a salesman, there is no rock bottom to the life. He don't put a bolt to a nut. He don't tell you the law or give you medicine. He is a man way out there in the blue, riding on a smile and a sunshine. तो ये चार्ली का लाइन था. ये थोड़ा सा मुश्किल था, बहुत डीप दिया हुआ है. Okay. So I believe it's a tough question. Which of the following pairs, writers and book is not correctly matched? ये तो बेबी क्वेश्चन है, ये सबको पता होना चाहिए. सलमान रश्दी, समर इन कलकत्ता, ये कमला दास का है ना कि सलमान रश्दी का है. The method of teaching a language that involves a systematic presentation of the structure of L2, that is second language, moving from simple to the more complex in the form of drills. ये तो हमने लास्ट रिवीजन क्लास में किया था ना, ये सारे ड्रिल वाले. यस सर. अटेंड किया था, ऑडियो लिंगुअल मेथड. तो ये सबके सही होने चाहिए. A certain reason question. In The Hero as Man of Letters, Carlyle defined the man of letter as a prophet who interprets divine idea of the world. Reason. Carlyle adopts this concern from Fish, Huber, thus was this Gladden, which argues that the scholar must see through the sensual appearance of things to the underlying spiritual reality. ये भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था, खासकर इसका जो रीजन है. The right answer is both A and R are true, and R is the correct explanation of A. Which of the following is not a chapter of the novel Rainbow? The right answer is The Live at the Marsh. ये भी थोड़ा सा डीप क्वेश्चन कह सकते हैं, बिकॉज ज्यादातर लोग रेनबो के चैप्टर पे नहीं ध्यान देते कौन से चैप्टर का नाम है. ओके. Which of the following is the correct chronological order of parts of the novel To the Lighthouse? ये तो हमारे मॉक टेस्ट का क्वेश्चन है, एकदम सेम टू सेम.
multiple times asked. The right answer is the window, the time passes in the lighthouse. Which skull has been unearthed by the grave digger in Act 5 of Shakespeare's play Hamlet? Yorick is the right answer. Hamlet का grave digger scene से ये लिया हुआ है. Question number 45. In which stanza are sages mentioned? ये बहुत ही deep question है. So I believe it should be called as a tough question. Selling to Byzantium के stanza 3 में है ये. सर इस बार डीप सारे सही हो गए, इजी वाले सब गलत हो गए हैं. यहाँ तक कि वो क्वेश्चन जो है बेकन का, जिसे मैंने क्लास में अपने बच्चों को एक्शन कर करके न जाने कितनी बार समझाएगा, मैं उसे भी गलत कराई. तो ये आपका पैटर्न है, सबका अलग अलग पैटर्न होगा मे बी. In Tenny's Ulysses described how he plans to set forth again from Ithaca. Reason: the poem expresses Tenny's sense of the need of going forward and braving the struggle. Again, फिर इसमें भी यही है, both A and R are true, and R is the correct explanation of it. The title of second part of the Westland is taken from which of the following English grammar test? ये मिडिल्टन का है, ये आपके PDF में भी दिया हुआ है और वीडियो में भी पढ़ाया हुआ है. Which of the following writers does not belong to Victorian period? ये हमने यूनिट 1 में कवर किया था, if you remember. Walter Scott is a romantic period writer, not a Victorian. Question 49. The term negative capability, ये सबको याद होगा, सबका सही होना चाहिए. Letter written in December 1817. और लेटर किसे लिखा गया था? अपने ब्रदर को उन्होंने लिखा था, जॉर्ज थॉमस. 49 का लेक्चर इन जनरल लिंग्विस्टिक कब पब्लिश किया गया था? 1916. ये सबका सही आंसर होना चाहिए. Which of the following not a critical thought of Sir Philip Sidney as expressed in his apology for poetry? ये क्वेश्चन भी हमने मॉक टेस्ट में दिया था, यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट किया हुआ है. C is the right answer. Sidney suggests that there have been two kinds of poetic imitation. Yes. सर ये क्वेश्चन थोड़ा सा एलैबोरेट कर दीजिए प्लीज. मुझे ये टू काइंड्स ऑफ इमिटेशंस बता दीजिए, और ये राइमिंग और वर्सिंग. Right. तो कौन बताएगा ये टू काइंड ऑफ इमिटेशन कौन कौन से हैं? सर इसमें तो नोट दे रखा है ना, ये तो ये ये नहीं है गलत सर, हुआ. इमेजिनेशन नहीं है सर, इसमें यही इसमें से अलग है. थ्री काइंड्स ऑफ इमेजिनेशन थे सर. फिलोसफिकल था, रिलीजियस था और एक इमेजिनेटिव था. इमेजिनेशन था. ओके. यस, बट यहाँ पे बात चल रही है इमिटेशन की. क्या क्या इमिटेशन करते हैं? तो एक चीज जो है वो एक्सीलेंस को इमिटेट करते हैं. दे इमिटेट द एक्सीलेंस ऑफ अदर पोइट्स, एक्सीलेंस ऑफ गॉड, जो भी एक्सीलेंस उनको मिल जाए तो उसको इमिटेट करते हैं. और दूसरा जो है वो फिलोसफी या फिलोसॉफिकल आइडिया को इमिटेट करते हैं. और सर ये राइमिंग एंड वर्सिंग टू द स्टेटस ऑफ ऑर्नामेंट्स, इसका क्या मतलब है सर? Sidney relegates rhyming and versing to the status of ornaments. ये जो राइमिंग और वर्सिंग है, ये इनको ऑर्नामेंट का स्टेटस देना चाहिए, ये अलंकार हैं, ऐसा ही रेलिगेट करते हैं. रेलिगेट का मतलब होता है मानना या रिजेक्ट करना. मानना. मान लेना. ओके सर. सर तब कितने काइंड्स ऑफ पोएटिक इमेजिनेशन इमिटेशन इसमें हो गए? दो ही है. लेकिन सर ये तो रॉन्ग फैक्ट नहीं, दो नहीं है, तीन है. सिडनी का एक्सप्रेस नहीं किया है. दो नहीं है, तीन है. In this question it is asked not a critical thought of Sir Philip Sidney. राइट. सर इसमें तीन है. जो गलत है. राइट, तीन है. सर पहला आपने बताया फिलोसॉफिकल इमिटेशन, फर्स्ट आपने बताया था, फिर उसके बाद बताया था गॉड लाइक एक्सीलेंस, और थर्ड आपने क्या बताया सर? थर्ड इज नेचुरल हिस्ट्री को इमिटेट करते हैं.
क्वेश्चन नंबर 52, हु ट्रांसलेटेड तेंदुलकर रांदेता कोट चालू है? ये तो कितनी बार हमने किया, प्रिया दारकर। ये सबका सही होना चाहिए। मुझे याद है किसने क्वेश्चन पूछा सर किसने ट्रांसलेट किया है, वो वॉइस भी मुझे याद है अभी। प्रीति मैम। राइट। वर्जीनिया वुल्फ सेंट्रल क्लेम इन हर नोवेल द रूम ऑफ वंस ओन इज दैट। ये तो बहुत क्वेश्चन इजी है, ये यूपीएचएससी में भी पूछा गया था। अ वुमेन मस्ट हैव मनी इन अ रूम ऑफ हर ओन इफ शी इज राइट फिक्शन। तो ये इजीएस्ट क्वेश्चन में से है। वो बुकर प्राइज कब मिला है ब्लाइंड असेसिंग के लिए? तो ये तो हमने रिवीजन क्लास में भी कवर किया था। अगर आपको ईयर याद होगा तो आपका आंसर ये सही होगा, 2000 इज द राइट आंसर। इन विच प्ले टॉम विंगफील्ड। अब ये पूछ रहा है टॉम विंगफील्ड किसका कैरेक्टर है, सिंपल भाषा में पूछ रहा है टॉम विंगफील्ड किसका कैरेक्टर है, किसका है? ग्लास मैनेजरी का है। ठीक है, ऐसे ये पूछ रहा है कि टॉम विंगफील्ड अनाउंसेस द फॉलोइंग एट द बिगिनिंग, द प्ले इज अ मेमोरी, बीइंग अ मेमोरी इट इज डिमली लाइटेड, इट इज सेंटिमेंटल, इट इज नॉट रियलिस्टिक। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आई होप सबका सही हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन 56, ये पोएम की लाइन से मैच करना था। ये एकदम मैंने मॉक टेस्ट में डाला था, सारी लाइनें यहाँ पे मॉक टेस्ट में डाली हुई। आप मॉक टेस्ट निकाल के देखेंगे। दराबन का नेबर मोड एकदम सही है। डैडी 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 पोएम सिल्विया प्लाथ बहुत इजी है। मेंडिंग वॉल ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट का। लेकिन ये ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल ये तो एक प्ले है शेक्सपियर का। ठीक है, तो ये भी एक बहुत ही इजी क्वेश्चन में आएगा। अरुंधति रॉय को बुकर प्राइज गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए कब मिला था? 1997। ये भी आपके पीडीएफ में पढ़ाया गया है, वीडियो में भी है। एंड इट शुड बी द राइट आंसर। Which among the following is not true about A.K. Ramanujan poem A River? ये भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है और बहुत इजी आंसर भी है इसका। ये जो काउज हैं इनका नाम श्यामा और राधा है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या नाम है? राइट। तो ये तो बहुत अच्छे से सबको याद होगा। क्वेश्चन नंबर 59, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लैंग्वेज वेरिएशन। In popular uses, the term dialect refers to a form of language that is regarded as substandard, incorrect, or corrupt. The dialect, as a technical term in linguistics, refers to distinct form of a language. अब ये कह रहा है कि दोनों में से चेक करो कौन सा सही है। तो यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन सही हैं। डायलेक्ट जो होता है ऑब्वियसली लिंग्विस्टिक के अंदर टेक्निकल टर्म होता है जो कि अलग अलग लैंग्वेज के फॉर्म को बताता है। सो बोथ आर राइट, बट हाँ ये है कि ये कंफ्यूजिंग हो सकता है और किसी का ये आंसर गलत हो सकता है अगर आपने लिंग्विस्टिक ढंग से नहीं पढ़ा है तो। इन द नोवेल टेस्ट ऑफ डॉर्बरबिलिस बाय थॉमस हार्डी व्हिच कंट्री टेस्ट हस्बैंड एंजल क्लेयर हैड टू गो? ये तो बहुत अच्छे से पढ़ा है हमने, ब्राजील सही आंसर होना चाहिए, सबका सही होना चाहिए। फॉर whom the following lines are written in Charles Dickens' Hard Times? A man of reality is a man of fact and calculation, a man who proceeds upon the principle that 2 and 2 are 4 and nothing over, and who is not to be talked into allowing for anything over. तो ये थॉमस ग्राइंड का है और ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा डीप क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आप आसानी से इसे कर सकते हैं। सर स्टार्टिंग में फैक्ट है ना, तो फैक्ट वाली बातें वही करता है बस। राइट। Who speaks the following line in Samuel Beckett Waiting for Godot? Nothing happens, nobody comes, nobody goes, it's awful. ये तो कितनी बार पूछा गया है। एस्ट्रोजन। The opening scene of T.S. Eliot Family Reunion takes place. कहाँ पे होता है? तो ये ड्राइंग रूम में होता है। यहाँ तक तो इजी था, लेकिन आफ्टर टी एंड आफ्टरनून एंड मार्च, लेट मार्च, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया था। So that might have created a confusion. After tea and afternoon in late March. तो क्वेश्चन इजी ही थे, लेकिन जानबूझ के थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट किया गया था स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जॉफ्री चौसर कैंटरबरी टेल्स। ये कहते हैं देयर आर टू प्रोज टेल्स, टेल ऑफ मेलिबियस एंड पार्सन टेल। ये तो हमने किया हुआ था रिवीजन क्लास में। नियरली ऑल अदर टेल्स आर कंपोज्ड इन डेकासिलेबिक और हीरोइक कपलेट।
ये भी हमने किया हुआ था, हीरोइक कपलेट वाला। ये दोनों ही आंसर सही है। Which among the following facts is not correct? आप देखेंगे जितना बढ़िया हमने रिवीजन क्लास में रिवीजन किया था ना, उसमें ऑलमोस्ट सारे टॉपिक कवर हो गए थे। सर रिवीजन क्लास में बहुत हेल्प मिली थी हम लोगों को। सर रिवीजन क्लास नहीं होता तो बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग कंफ्यूजिंग में गलत करके चले आते हैं, माइनस मार्किंग करा के। और रिवीजन जब हम लोग क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था जैसे रिवीजन क्लास के जो क्वेश्चंस है वो ऐसे इको हो रहे थे एकदम। बहुत सारे क्वेश्चन रिवीजन क्लास से जो है फंसे हैं बहुत सारे, और ये नहीं होता तो हम लोगों का मार्क्स इतने नहीं आ पाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि अटेंशन कहाँ पे रखना है वो रिवीजन में ही पता चलता है ना कि कहाँ पे फोकस रखना। Which among the following facts is not correct regarding John Donne poem The Canonization? सही नहीं है, तो इसका बी वाला ऑप्शन क्या था? इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ डिबेट। यहाँ पे कोई डिबेट नहीं हो रहा है विद अ फ्रेंड हु इज आर्गिंग विद द लवर ऑफ द फॉलीज ऑफ हिज लव। ये इजी क्वेश्चन था। विलियम वर्ड्सवर्थ लाइन कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबव क्लिंटन अबे वाज रिटन ऑन। अब 1798 तो सबको पता था, अब ये जो डेट दे दिया है ये कंफ्यूजन क्रिएट किया होगा। ओके सर ये टाइटल में लिखा डेट, जो टाइटल है उसी में डेट लिखी हुई है, जो टाइटल अगर पूरा याद हो तो। लेकिन पीडीएफ में ये नहीं था सर, पीडीएफ में होता तो ये टीए भी अच्छा सही होता। पीडीएफ में नहीं दिया हुआ है, टाइटल दिया हुआ है तो पोएम के टाइटल में तो है डेट दिया है सर, लेकिन उसमें 13 जुलाई नहीं लिखा है। अच्छा मैं एक बार चेक करूंगा। जुलाई 13, 1798 ऐसे डेट ही दी है शायद टाइटल में, है ना सर? पूरा टाइटल actually it is mentioned directly in the title. Yes, it is there in the title. Yeah, it's there. Okay, question number 67. ये तो कितनी बार हमने किया। टर्जा राइमा में कौन सा लिखा है, स्पेंसरियन स्ट्रेंजा में कौन सा लिखा है, राइम रॉयल में कौन सा लिखा है। इजी होना चाहिए। डी इज द राइट ऑप्शन। चाइल्ड हारल पिलग्रिमेज, ये किस में लिखा हुआ है? राइम रॉयल में। जॉन डोनली सर। चाइल्ड सर, अरे सर वो बायरन ने सर। हाँ, टर्जा राइमा, शेली का ओ टू द वेस्ट विंड, ABCB, ये तो सबको पता है। अगर उतना भी पता होगा तो आपका आंसर सही हो जाएगा। तो उसी से हो गया था, ऑप्शन क्लिक हो गया था, क्योंकि ए का 3 सिर्फ एक ही में है। बाकी सबको करना ही नहीं था, केवल शेली का ओड टू वेस्ट विंड देखना था और आंसर लगाना था। यस सर, अगर ये थर्ड ऑप्शन जो टर्जा रहमा ये और भी ऑप्शंस में दे देता तो हम लोग कंफ्यूजन में गलत कर देते हैं, क्योंकि बाकी सबका उतना हुआ है। राइट। Which of the following facts is not true regarding S.T. Coleridge concept of imagination? ये भी मॉक टेस्ट में किया हुआ था हमने और बहुत इजी भी क्वेश्चन है। ये करेक्ट ट्रू नहीं है, ठीक है। हमने मॉक टेस्ट में किया था, कौन सा ट्रू है। सेकेंडरी इमेजिनेशन का डेफिनेशन मैंने पूछा था। तो द डेनोटेशन एंड कोनोटेशन आर डिटरमिनेंटल टू ईच अदर, ये गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं कहा इन्होंने। Harish Trivedi is ऐसी India, England, France. Post-colonial translation triangle discusses about the contribution of Munshi Premchand towards enrichment of Indian literature. Which among the following is incorrect about his contribution and creativity? कौन सा गलत है, incorrect है? He translated literature available in English only. क्योंकि खुद ही फ्रेंच वाले को इन्होंने किया हुआ है, तो ये तो ऑब्वियसली गलत है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। अच्छा, जो मैं इजी बता रहा हूँ वो जितने भी लोग यहाँ प्रेजेंट हैं, आप मान के चलिए कि आपका अगर गलत हुआ है तो आपने या तो इमोशनली अनस्टेबल होके आपने गलत किया है, या फिर आप क्लास में प्रेजेंट नहीं थे, तो ही रीजन हो सकता है। क्लास में प्रेजेंट थे तो आपका सही होगा, और नहीं सही हुआ तो आप एग्जाम में प्रेशर के अंडर में गलत करके आए। अकॉर्डिंग टू वॉल्टर बेंजामिन, द बेसिक एरर ऑफ द ट्रांसलेटर लाइज इन, इसका आंसर ए है, प्रिजर्विंग द स्टेट ऑफ हिज ओन लैंग्वेज। प्रिजर्विंग द स्टेट ऑफ हिज, इसको गलत लगा दिया था मैंने, यही ऑप्शन लगाया था, बट मैंने OMR में चेक किया तो मैंने, क्योंकि पहले वाले PDF में ये एक्सेसिव यूज वाला था, बट यही वाला मैंने लगाया। ए सही है इसका, प्रिजर्विंग द स्टेट ऑफ हिज ओन लैंग्वेज। ठीक है सर मैंने भी इसमें डी ऑप्शन लगाया था, क्योंकि मुझे ये बात याद आ रही थी आपकी कि उन्होंने बताया था कि बहुत ही उसको बहुत ही क्लियर वे में और बहुत इजी वे में ही ट्रांसलेट कर देंगे तो फिर उसका एसेंस निकल जाता है। तो सर ये बात मुझको याद आ रही थी, इसलिए मैंने डी ऑप्शन टिक कर दिया था। राइट, देखेंगे मैं इसका ओरिजिनल टेक्स्ट से ये आंसर लिया हूँ सारे।
काफी रिसर्च के बाद देखिए, द फंडामेंटल एरर ऑफ द ट्रांसलेटर इज दैट ही होल्ड्स फास्ट टू द स्टेट इन विच हिज ओन लैंग्वेज हैपेंस टू बी rather than allowing it to be put powerfully into movement by the foreign language. ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन लिया गया था. यस सर, यही वाला है आंसर. Okay, coming back. Question number 71. With whom the gorilla and the Superman have been compared in Derek Walcott's A Far Cry from Africa. ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था. नेटिव्स और व्हाइट मैन. नेटिव्स आर गोरिल्लास एंड व्हाइट मैन आर सुपरमैन. Which who becomes the victim of ugly social force in Arundhati Roy, the god of a small thing. अब देखो, लव लॉ का हमने 2 मॉक टेस्ट के अंदर क्वेश्चन दिया हुआ था और हमने इसको जो एनालिसिस किया था मॉक टेस्ट का, उसके अंदर भी हमने लव लॉ को डिस्कस किया था. द राइट आंसर इज वेलुता. देखो, मैं जब पूरे पेपर को देख रहा था तो मैं ये सोच रहा था जो लोगों ने कंटिन्यूअसली क्लास अटेंड किए ना, दे विल डेफिनेटली क्वालिफाई. क्लास अटेंड नहीं करेंगे तो नॉलेज कहाँ से आएगा? ऐसे फ्री में तो नहीं आएगा. Things fall apart. Chinua Achebe depicts the life of people of Nigerian village. बहुत ही इजी क्वेश्चन. उमोफिया, ये भी क्वेश्चन था ये. Which of the following facts is incorrect about Kamala Das poem and introduction? ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था. The poem is wholly autobiographical. ये तो सही है. Kamala Das described in this poem herself as an Indian of very fair complexion. Very fair complexion कहीं नहीं बोला उसने पूरी पोएम के अंदर, तो ये गलत आंसर है. सर वो मालाबार है ना, तो इससे भी कलकत्ता दिया है. Right. Which of the following novelists describe his novel as a comic epic poem in prose? ये तो हमने रिवीजन क्लास में किया था. हेनरी फील्डिंग का जोसेफ एंड्रयूज. जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की फैमिली कहाँ से बिलोंग करती है? आयरिश तो सबको पता होगा, कंफ्यूजन आया होगा प्रोटेस्टेंट है कि कैथोलिक है. लेकिन चूंकि वो क्रिटिसिज्म और विट की बात करते थे, तो प्रोटेस्टेंट का एक काम होता है क्रिटिसाइज करना और विट करना. So that could be a clue जहां से आपने सही आंसर लगाया होगा या छोड़ दिया होगा. Question number 77. In which poem does W. Jordan identify suffering and his human position as a key to concern of art? Art यहाँ पे दिया हुआ है. क्वेश्चन के आंसर या क्वेश्चन के अंदर ही आंसर दिया हुआ है. कौन सा जो है आर्ट की बात करता है? तो that's muses debuts arts, the art of museum. From which of the following poems are given lines taken? Come to the window. ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है. Sweet is the night air, only from the long line of a spray where the sea, Dover beach, sea. बीच आ गया तो सी आ गया. तो यहाँ भी क्वेश्चन में भी आंसर दिया हुआ है, तो ये भी सबका सही होना चाहिए. The given lines have been taken from which of the following poems? We decay like corpses in a charnel, fear and grief. अब fear and grief किस में आएगा? एलिजी में आएगा. एलिजीज में कौन सा है? एडोनिस में है. तो एडोनिस इसका सही आंसर. बहुत ही कॉमन सेंस भरा आंसर था, इसको बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं थी. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग यूफोनी एंड कैकोफोनी. ओके, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था क्योंकि ये मैंने कवर नहीं किया था. यूफोनी एंड कैकोफोनी. Euphony is a term applied to language which strikes the ear as a smooth, pleasant, and musical, and cacophony is a term applied to language which is perceived as harsh, rough, and unmusical. दोनों इसका सही आंसर है. Both 1 and 2 are correct. सही टर्म्स में भी आते हैं सर यूफोनी और कोकोफोनी की डेफिनेशंस. राइट. क्योंकि पूरे पेपर को देख करके मुझे केवल 2 ही क्वेश्चन लगा जो मैंने क्लास में कवर नहीं किया था. बाकी 88 क्वेश्चन हमने कवर किए हुए. Derrida begins his essay, Structure, Sign and Play in the Discourse of Human Sciences with following quotation. We need to interpret interpretations more than to interpret things. ये भी हमने किसमें कवर किया था? रिवीजन क्लास में, मोंटेल का. सर ये आपने तो बहुत अच्छे से पढ़ाया था. राइट. ओके, टाइप ऑफ ट्रांसलेशन विथ मीनिंग. ये भी हमने किया हुआ था ना. फ्री ट्रांसलेशन तो सबको याद होगा. अगर वो याद है तो आप देखेंगे कि उसको करना बहुत ही आसान है. एक ही ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें बी का 1 है, द लिबर्टी ऑफ ट्रांसलेशन. और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है.
आपको आंसर तुरंत मिल जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं था इसमें। आपको ट्रांसक्रिप्शन नहीं भी पता हो, मेटाफ्रेजिंग नहीं भी पता हो तो चलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Who made the following statement? One cannot think well, love well, sleep well if one has not dined well. इसमें किसी को कंफ्यूजन तो नहीं हुआ? वर्जीनिया वुल्फ का रूम ऑफ वन स्टोन। ये क्वेश्चन मेरा छूट गया सर, ये क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा था। फिर इसमें हमको कोई बात नहीं। मैंने जेन आयर लगा दिया था डाइन वेल से। अच्छा, okay, it can be confusing. In the novel Jane Eyre, Rochester is described as a Byronic hero. ये तो आसान है ना? नहीं सर, ये भी आसान नहीं था। अच्छा, okay. The novel A House for Mr. Biswas tells the tragicomic story of the search for independence and identity as an Indian Brahmin living in Trinidad. I think it was easy one. Is it? यस सर। Okay. Which of the following is the beginning line of the poem Daddy? ये तो मैंने mock test में पूछा हुआ था। You do, you do not. How many persons have been portrayed in Jayant Mahapatra poem? ये भी हमने किया हुआ था 3। कौन कौन था इसके अंदर? नरेटर था, फिशरमैन था और उसकी बेटी थी। ये सब तो लाइन बाय लाइन एकदम पढ़ा हुआ है। How many essays were contributed to edition in Tatler? 42 ऐसे थे इनके। सर ये जोसेफ एडिशन को हम लोगों ने बहुत हल्के में ले लिया सर, बहुत लास्ट में इसको पढ़ाया गया। मतलब पीडीएफ में था वैसे, लेकिन 2-2 क्वेश्चन इससे पूछ लिए गए सर। राइट। और सर उसमें एक क्वेश्चन में मुझे कंफ्यूजन भी था। मुझे लगा कि ट्यूसडे और थर्सडे था, तो ये वीक में 2 बार पब्लिश होता है, लेकिन वो पूछा ही नहीं था, वो कुछ और पूछा था उसने। Which is the following statement regarding स्पेक्टेटर का उसके बाद आता, तो टैटलर पहले आता 79 तक, फिर उसमें था कि उसके बाद आया, तो जो स्पेक्टेटर वो 1711 to 12 तक आया था। और आपने ये डे वाला भी बताया था कि एक्सेप्ट संडे। राइट। ये कवर तो हमने अच्छे से किया था, कोई डाउट नहीं है। Which of the following statement regarding a portrait of Arthur as young man is incorrect? ये हमने लास्ट डे में बताया था ना, ये रिवीजन क्लास में पूरा स्टोरी मैंने बताया था। तो ये कह रहा है कि कौन सा इनकरेक्ट है। तो इट्स अबाउट द लाइफ ऑफ एन अपर क्लास फ्रेंच बॉय स्टीफन डेडालस, जो कि एक आयरिश कैथोलिक बॉय था, फ्रेंच बॉय नहीं था ये। Who is the father of Alison in the play Look Back in Anger? Colonel Redfern. Question 91. T.S. Eliot Westland has long been considered as an archetypal text of literary modernism. ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। मॉडर्निज्म के राइटर हैं ये। मॉडर्निज्म होगा तो सही है, या तो न्यू क्रिटिसिज्म होता तो सही है। ठीक है, तो क्योंकि बहुत सारे फ्रेगमेंटेशन है इस पोएम के अंदर, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। यहाँ पे पोएम और पोएटिक लाइंस मैच करनी थी। प्रॉस्पेस स्कॉलर जिप्सी की है, सेकंड कमिंग की है और लोटस ईटर्स की है। तो सेकंड कमिंग तो सबने एकदम बढ़िया से पढ़ा हुआ है, तो मैं मानता हूँ कि सबका ये आंसर सही हुआ होगा। ठीक है, इसका ये राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स बुक्स और राइटर्स? सर ये नहीं किया। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना, ये आउट ऑफ सिलेबस है। यस सर, ये हमने अवॉइड करना। इसका सिलेबस से कोई लेना देना नहीं है, किसी भी सर यूनिट इसमें के अंदर ये नहीं आता है। ऑप्शन के अलावा कोई आ भी नहीं रहा था। राइट, तो इसका सी जो है वो राइट ऑप्शन है। तो यही एक क्वेश्चन मैंने मुझे देखा कि मैंने पढ़ाया नहीं है और ये एकदम आउट ऑफ सिलेबस है। Which of the following poems of T.S. Eliot is written in the light of tradition and individual talent? ये वेस्टलैंड है। नेक्स्ट इज करेक्टर। मैडम बाबरी के करेक्टर को कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ मैच करना था, तो ये तो हमने किया हुआ था क्लास के अंदर। मोस्टली लोगों का सही हुआ होगा। ए इज द राइट ऑप्शन। In the following lines, what does the image of the great star early droop primarily show when lilacs last in the dooryard bloom and the great star early droops in the western sky in the night?
तो ये क्या इमेज प्रेजेंट कर रहा है ग्रेट स्टार? ये मॉक टेस्ट का क्वेश्चन है, चेक करेंगे। एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ एंडेड सडनली इवन दो नेचर कंटिन्यूज अनचेंज्ड। इजी क्वेश्चन था, सबका सही हुआ होगा। Next question, question number 97. Which of the following statement is not correct about Chinua Achebe? Things Fall Apart was his third novel. सही नहीं है, ये पूछ रहा है। फर्स्ट नोवेल में से तो ये इनका थर्ड फर्स्ट नोवेल है। थर्ड नोवेल उनका Right. डेब्यू He was born and educated in Nigeria. He novel Things Fall Apart published publication in 1958. Title जो है Things Fall Apart से, ये सब हमने मॉक टेस्ट में किया हुआ था। सर्च एंड रीजन के अंदर साइकोलिंग्विस्टिक्स से क्वेश्चन पूछा गया है। कैन एक्सप्लेन हाउ ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर कैपेबल ऑफ लर्निंग अ लैंग्वेज। और psycholinguists attempt to answer questions whether the human brain has an inborn language ability in such a way that certain grammatical and semantic patterns are evident. तो डी इसका सही आंसर है। अच्छा, जितने भी सर्च एंड रीजन के क्वेश्चन है सबका यही आंसर है। ए एन आर है ट्रू, आर इज करेक्ट। सर एक में मैं कंफ्यूज हो रही थी, फिर भी मैंने यही लगा दिया कि सर आपने कहा था ज्यादातर यही आंसर होता है। राइट। ओके, नेक्स्ट। मिस्टर एंड मिसेस बेनेट जेन ऑस्टेन के नोवेल में प्राइड एंड प्रेजुडिस में लिव्ड विद देयर 5 डॉटर इन, कहाँ पे है? ये तो हमने मॉक टेस्ट में किया था, राइट, लॉन्गबर्न में। जॉन वेबस्टर। अच्छा, मॉक टेस्ट केवल हमने रिवीजन क्लास जो किया है ना करीब 10 दिन का, उसमें से मुझे लग रहा है कि 35 से 40 क्वेश्चन आए हैं। Yes, sir. राइट। जॉन वेबस्टर द डचेस ऑफ माल्फी इन्फ्लुएंस्ड बाय, किससे इन्फ्लुएंस हुए थे? सिडनी के आर्काडिया से। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था। Which of the following is not correct about rhyme of the ancient mariner? Poem open with the line it is a very old ship. नहीं, इसके साथ ओपन नहीं होता है, ये ओपन होता है इट इज एन एंशिएंट मैरिनर के साथ। बाकी सब इजी है। द पोएम इज अ बलाड, ये तो सबको पता है। पोएम इज रिटन इन क्वार्टर एंड स्टेंजा फॉर्म। द पोएम इज डिवाइडेड इनटू 7 पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 102, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग एपिथैलामियन? ये भी हमने मॉक टेस्ट में किया हुआ था, एपिथैलामियन वाला, राइट। The poem does not begin with a traditional invocation of the muses. इसके अंदर muses को इनवाइट नहीं किया गया है, लाइन बाय लाइन हमने इसको पढ़ा हुआ था। Assertion reason एक बार फिर से आ गया। For Bharat Muni, the main purpose of dramatic performance is to create rasa, and without rasa, drama have no appeal to the spectator. ये easy question था again. Question number 104, which one is not correctly matched about our beloved? अब सीत कौन है? Father of Denever. नहीं, सीत फादर की डेनेवर नहीं है, सीत इज द मदर ऑफ डेनेवर। ओके, तो ये भी इजी क्वेश्चन था, हमने बिलवर्ड अच्छे से कवर किया हुआ था। Where did Ernest Hemingway, when did he won the Nobel Prize? ये भी हमने क्लास में किया हुआ है, 1954। क्वेश्चन 106। हाँ जी मुक्ता जी। सर मेरा बस एक डाउट था, वो जो कांग्रेस वाला क्वेश्चन जीएस पेपर में लेके था सर, उसमें 72 डेलीगेट्स है। इवन आईएनएस जो उनकी वेबसाइट है प्रॉपर कांग्रेस की, ओके सर, मैंने 2 बार भेजा तो पर वो करेक्ट नहीं हुआ, तो मुझे लगा कि क्या है फिर। नहीं 72 है। Nagmandala is based on 2 folk tales Karnad heard from A.K. Ramanujan। आंसर में तो सर 69 वाला आंसर लगा हुआ है पीडीएफ में। नहीं 72 है, मैंने अमेंड किया हुआ है, देखेंगे। यस सर, ओके सर। ठीक है, 72 है। The story is that of a young bride who is neglected by her indifferent husband। तो ये दोनों ही सही है, ये भी हमने क्लास में कवर किया है। Which of the following statement is incorrect? रोला बार्थे published his seminal work Course in General Linguistics। अभी ऊपर ही क्वेश्चन दिया था कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक का कि फर्डिनांड डिसूसो ने कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक का पब्लिश किया था। वही सेम क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हुआ है, तो यहाँ मेमोरी की कोई जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन के अंदर आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू स्पेक्टेटर। द स्पेक्टेटर began after 2 months of seizing the Tatler. The spectator appeared daily except Sunday and lasted for 555 numbers। तो ये दोनों ही सही है। सर मुझे थोड़ा सा ये इलैबोरेट कर दीजिए कि वो जो ट्यूसडे और थर्सडे हम लोगों ने पढ़ा था उसमें एसे में, वो सही है कि ये दोनों में डिफरेंस ऐसा क्यों है? नहीं, ये बोला है स्पेक्टेटर के बारे में, ना कि टेटलर के बारे में। टेटलर जो था वो ट्वाइस ए वीक था, और जो स्पेक्टेटर था वो जब हमने इसका ऐसे पढ़ा था ना अबाउट स्पेक्टेटर, जहाँ स्पेक्टेटर बताता है कि मैं कौन हूँ और मेरा पर्पस क्या है स्पेक्टेटर को लिखने का, वहां पे बताता है कि मैं इसको रोज पब्लिश करूंगा एक्सेप्ट संडे।
याद आया? ओके सर, लेकिन उसका ट्यूसडे और थर्सडे था, मतलब हाँ, वो टेटलर जो का ट्यूसडे थर्सडे था। सर ओके सर। 3 दिन था ना, सर 3 दिन था, ट्यूसडे ट्यूसडे थर्सडे थर्सडे सैटरडे एंड था। हाँ, सैटरडे। ट्यूसडे थर्सडे एंड सैटरडे, राइट। हमें टेड भी यही ह्यूग्स पोएम, कंफ्यूजन हुआ सर इसमें। ओके, टेड ह्यूग्स पोएम हॉक रोस्टिंग वाज बेस्ड ऑन हिज बॉयहुड एक्सपीरियंस ऑफ फिशिंग एंड शूटिंग इन हिज नेटिव, कहाँ पे? टेड ह्यूग्स कहाँ का था? ये थोड़ा सा मुश्किल रहा होगा आपके लिए, मुझे लग रहा है। यॉर्कशायर। सर पढ़ा था किसी ने किसी क्लास में, इसीलिए सही हो गया। गुड, या तो वेरी नेट गुड, पे पढ़ा है या फिर एसपीएससी में पढ़ा है, कहीं ना कहीं पे पढ़ा है। कहीं ना कहीं पढ़ा है। ओके, विच ऑफ द सर फॉलोइंग इज बीइंग यॉर्कशायर एड्रेस्ड? ज्यादा ही पढ़ने में आता है, जैसे यॉर्कशायर हम थोड़ा फ्रिक्वेंटली सुनते हैं, बस ऐसे राइट। लगा दिया। Which of the following is being addressed in his given lines of William Wordsworth Ode Intimation of Immortality? किसको ये एड्रेस किया गया है? Thou best philosopher who yet dost keep thy heritage. So it is addressed to the child. क्योंकि ये चाइल्डहुड के बारे में ही है ना, इस रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। मैम सर ओड ही पूरा चाइल्डहुड पर है, I चाइल्डहुड guess। पे है, राइट। Which of the following facts is not true regarding Blake's poem The Lamb? ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन लग रहा था मुझे। द सेकेंड स्टेज ऑफ 10 लाइन्स अटेम्प्ट टू आंसर द क्वेश्चन पोज्ड टू द इनोसेंट लैम्ब, ये सही नहीं है। अभी ये कौन से स्टेज में कितनी लाइनें हैं, ये थोड़ी सी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है। द पोएम हैज मैंने 2 बी स्टेज ऑफ 10 ऑप्शन लाइन ईच। हाँ जी, बी ऑप्शन नहीं क्या, मतलब सर एक्सप्लेन कर दीजिए। सर मैंने बी टिक कर दिया। नॉट ट्रू लिखा है ना, द स्पीकर इन द पोएम इज एन इनोसेंट चाइल्ड, ये तो सही है ना। ये बोला नॉट ट्रू, लैम्ब को एक इनोसेंट चाइल्ड की तरह बताया गया है। ओके सर। And the speaker itself is an innocent child, speaking like an innocent child. 112, the character होरी राम धनिया गोबर, मतलब बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछ दिया इससे तो, गिफ्ट ऑफ काउ से, बेबी क्वेश्चन। Whose harsh and unsympathetic treatment caused Jane Eyre to lead to the consignment to Lowood institution? किसके हार्श ट्रीटमेंट से जेन आयर जो है वो लोड इंस्टीट्यूशन को छोड़ देती है? मिसेज रीड, उसका जीना आराम कर देती है। Which of the following fact is not correct about Whitman's poem Oneself I Sing? Not correct. Oneself I Sing जो है वो प्रेसिडेंट लिंकन के बारे में नहीं है। इजी क्वेश्चन है, राइट। लिंकन के बारे में कौन सा पोएम है? सर When Lilacs lilacs Last। Captain, my captain, when relax. तो ये भी सबका सही होना चाहिए। Which of the following statements is incorrect about सरोजिनी नायडू? अब ये जो था बायोग्राफिकल डिटेल पूछ दिया था, ये भी ठीक सर है। नहीं किया। तो ये अच्छा कि आपने नहीं किया, क्योंकि बायोग्राफिकल डिटेल जनरली नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ ना हमेशा 1-2 क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स होंगे, तो ये तीसरा क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स है। राइट आंसर इज हर हस्बैंड वाज अ तमिल नेम्ड मुतलिया गोविंदराजल नायडू। बट कभी भी इस तरह के क्वेश्चन को ज्यादा सीरियसली नहीं लेना है, हमेशा 2-3 क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स रहेंगे। सर ये When did गोविंदा Bollywood- राजालू तो पता था, लेकिन ये आंध्रा के थे ये नहीं पता था। ये लगता था कि ये जो है तमिलनाडु के ही होंगे, तो ये वाला थोड़ा सा, क्योंकि यूपीएससी में था उसमें आपने बताया था, और वही कहीं ना कहीं ज्यादा नॉलेज भी गड़बड़ हो जाता है। लेकिन ये तमिल थे और आई थिंक ये आंध्रा के थे, तमिल के नहीं थे। अरे ये कोलकाता के हैं ना? नहीं, देखिए उनके वाइफ जो है साउथ इंडियन, उनके हस्बैंड साउथ इंडियन थे, राजालू। ये जो टाइटल है ना नायडू, ये सब आंध्रा में ही होते हैं नायडू, सर वो तमिलनाडु में लेकिन नायडू नहीं सर, मिलेंगे। के लिए गई हुई थी ना वो सर। उनका दिमाग भी नहीं गया कि ये नायडू है तो आंध्रा के ही होंगे, मतलब हाँ, वो गोपाल कृष्ण गोखले, और दिमाग में ये था कि लंदन वो पढ़ने गई थी, वो जो आंध्रा के नवाब थे उन्होंने उनको वहां भेजा था, वो हैदराबाद के। तो ये लगा कि गोपाल कृष्ण गोखले से क्यों ही मिलने जाएंगी, वो तो वहां पढ़ने गई थी, और ये गोविंदा राजालू जो है वो उनके हस्बैंड थे। तो रॉन्ग क्वेश्चन मस्ट बी when she has met where she is going to meet गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोल्डिंग को नोबेल प्राइज कब मिला था? 1983। और फिर आते हैं रोवर,
अल्फा अफ्राबेन का, द रोवर डील्स विद एडवेंचर्स ऑफ नेपोस एंड मैड्रिड, ये तो हमने लास्ट रिवीजन क्लास में किया था। एंड द एडवेंचर टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द रेन ऑफ चार्ल्स वन, चार्ल्स वन के रेन के बाद हुआ था, ठीक है, ड्यूरिंग प्यूरिटन इंटररेनम। So only one is correct. Which of the following is not correct about Raja Rao publication? अभी पूरा पब्लिकेशन ईयर पूछा गया है, कांथापुरा 1925 में ना होकर के 1938 में आया था, यूपीएचसी का सिलेबस में भी था, तो ये सबका सही होना चाहिए। In of studies, Bacon famously categorizes books into 3 types. Fill in the blanks. Some books are to be tested. ये तो हमने लास्ट वाले रिवीजन क्लास में किया था, सबको याद भी होगा, तो इतना इजी क्वेश्चन है ये। Which of the following statement is not correct about Volpini? It is a comedy written in blank verse.